السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. میں استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں سارے بچوں کا، بچوں کے خاص پروگرام کلرز آف اسلام میں. بڑوں کے لیے تو بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، یہ پروگرام خاص بچوں کا پروگرام ہے. میں ہوں زید پٹیل اور میرے ساتھ ہے یسرا، حمزہ، عبداللہ. الحمدللہ ہم سب یہاں آج اس پروگرام میں اہم باتیں خاص بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے انشاءاللہ کریں گے. اسلام کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تاکہ ہماری زندگیوں میں سدھار لائیں. ہمارا سب سے پہلا سیکشن، سب سے پہلا حصہ اس پروگرام کا ہے فیورز آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے احسان. اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جاننا، فیورز کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ پہلے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیورز کو جاننا کیوں ضروری ہے، کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو جاننے سے، یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ لوگ صحیح جواب دیں گے تو یہاں ایک اچھی سی گفٹس باسکٹ ہے میرے پاس، اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس انشاءاللہ آتا رہے گا جسٹ ایز این انکریجمنٹ. تو اللہ تعالیٰ کے احسان جاننے میں کیا بینیفٹس ہے؟ ہم لوگ کو یاد رہے گا تو ہم لوگ جنت میں جائیں گے اللہ کے احسانات کو یاد کریں گے تو ویری گڈ. یس. اور بتائیے کیا فائدہ ہے اللہ کے احسان کو یاد کرنے سے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا اسے یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا بینیفٹ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں الحمدللہ. جی. اور اپنے گناہ معاف ہوتے ہیں. کیسے گناہ معاف ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے. اللہ کی عبادت سے. عبادت سے کیسے احسانوں کا تعلق ہے؟ اللہ کے احسانوں کو یاد کرنے سے اللہ کی عبادت کا کیسے تعلق ہے؟ اللہ کے احسانوں کو یاد کریں گے تو اللہ کے احسان جب دل میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اچھا لگے گا. اللہ تعالیٰ کی ہم اور عبادت کریں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ بالکل صحیح. چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ہم آج انشاءاللہ ایک بہت پیارا، بہت بڑا احسان اللہ کا دیکھیں گے. اللہ کا فیور. فیور کسے بولتے ہیں؟ فیور کسے بولتے ہیں؟ آپ بتاؤ. فیور کسے بولتے ہیں؟ احسان کسے بولتے ہیں؟ عبادت کرنا ہمارا مقصد ہے، لیکن اللہ کا احسان، احسان یعنی فیور. فیور کسے بولتے ہیں؟ اچھا فیور نارملی کوئی کہے کہ میں تمہارے لیے فیور کرتا ہوں، مطلب اس نے ہم پر ایک کوئی چیز ہمارے لیے کی. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کیا یہ اللہ کے احسان ہیں ہم پر، اللہ تعالیٰ کے فیورز ہیں ہم سب پر. ہاں بالکل صحیح. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ کے احسانوں کو یاد رکھنا ہے، اور آج ہم ایک اہم احسان دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 78 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سننے کی طاقت دی، وَالْأَبْصَارَ دیکھنے کی طاقت دی، وَالْأَفْئِدَةَ اور سوچنے کی طاقت دی. فؤاد سے آتا ہے جس کا مطلب ہے دل، اور دلوں سے ایک انسان ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ میں یہ لینے والا ہوں راستہ یا وہ لینے والا ہوں. اسی طرح ایک اور چیز ہے لب، جسے کہتے ہیں انٹلیکٹ، سوچنے کی طاقت. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ کہا ہے یا اولو الالباب، اے سمجھ والے لوگوں. تو اس سمجھ سے ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو. اب ہم لوگ آج انشاءاللہ خاص طور سے بات کریں گے سوچنے کی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یعنی کہ کیپیسٹی دی کہ ہم سوچیں. اچھا یہ بتاؤ کہ جو ہمارے پاس یہ جو سوچنے، سمجھنے، غور کرنے، انٹیلیجنس یوز کرنے کی طاقت ہے، یہ آپ لوگوں نے اس طرح کی طاقت کیا اینیملز میں دیکھیں؟ کیا کوئی اینیمل کو دیکھا ہے جو موبائل پہ بات کر رہا ہے؟ نہیں. کیا کوئی اینیمل کو دیکھا ہے جو گاڑی ڈرائیو کر کے جا رہا ہے؟ ہاں، کوئی بھی اینیمل کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کوئی اینیمل کو دیکھا ہے جو کیا کر رہا ہے، جیسے لکھ رہا ہے، رائٹنگ کر رہا ہے، بک لکھ کے آئی ہے، یہ بک ہمارے ڈاگ نے لکھی ہے، یا کسی کیٹ نے بک لکھ کے دی، ایسی کوئی کتاب آپ نے دیکھی ہے؟ تو یہ کتاب، یہ سب طاقت کسے دی اللہ تعالیٰ نے؟ سوچنے کی طاقت کسے دی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی الحمدللہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری طاقت دی انسان کو، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے اس کے بعد؟ عبادت کرنا چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. ہاں، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے
सरेंडर करना चाहिए। अल्लाह ताला ने सोचने की ताकत दी। हाँ, आप सोचते हो? नहीं सोचते हो हाँ कि सोचते हो? सोचते हैं। क्या सोचते हैं? क्या? अच्छा चलो, आपने माइंड यूज किया, कोई चीज के लिए माइंड यूज किया, क्या चीज के लिए यूज किया? मिसाल बताओ, कौन बताएगा? आपने कभी अपना माइंड यूज किया है? किया है? किया है? क्या चीज के लिए यूज किया बताओ? इबादत करने के लिए, सोचने के लिए। और बताओ, और बताओ, चलो चलो, अभी मुझे कुछ अच्छे आंसर्स चाहिए। जो सही जवाब देगा, पढ़ाई करने के लिए, बिल्कुल सही। पढ़ाई करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए दिमाग इस्तेमाल करना होता है, नॉलेज हासिल करने के लिए सोचना होता है, समझना होता है। यस और नो? ओके, अब मुझे बताओ कि अल्लाह ताला ने सोचने की ताकत दी, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? कौन ये सही जवाब इबादत देगा? करना चाहिए। इबादत करना चाहिए। और बताओ, और हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों का इल्म हासिल करना चाहिए। यस। और बताओ, हम लोगों को ये ताकत का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। कोई कर ही नहीं सकता गलत इस्तेमाल। आप लोग क्या बोलेंगे? कोई गलत इस्तेमाल अक्ल का कर सकता है, नहीं कर सकता है? नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। रॉन्ग आंसर। आप लोगों को इरेजर दिया जाता है ताकि आप अपनी मिस्टेक को इरेज करो। गलती को इरेज करने के लिए इरेजर दिया जा रहा है। अच्छा बताओ मुझे, क्या कोई भी इंसान कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता गलत चीज? आपने देखा है गलत काम सोचने वाले लोग होते हैं, गलत चीज सोचते हैं। वो लोग सोचते हैं कि कैसे मैं तकलीफ पहुंचाऊं, ऐसा सोचते हैं कैसे मैं गलत काम करूं। ऐसे सोचने वाले लोग हैं कि नहीं है? बुरे लोग हैं दुनिया में जो गलत चीज भी सोचते हैं। यस, कैसे चोरी करूं, आपको बलून दिया जा रहा है इसलिए। और जैसे गलत चीज सोचते हैं, काम करो, किसी को मारूं। यस, ऐसे गलत चीज सोचते हैं। सोचने की ताकत किसने दी उन्हें? अल्लाह ने। उनको उस ताकत से क्या करना चाहिए था? अच्छे काम करना चाहिए था। लेकिन क्या कर रहे हैं वो? बुरे काम। सही है गलत है? सही है गलत है? सही है। गलत काम सोचना अच्छी चीज है? गलत है कि सही है? गलत है। अच्छी चीज सोचना सही है गलत है? अच्छी चीज सोचेंगे तो सही है, गलत चीज सोचेंगे तो गलत चीज सोचेंगे तो गलत है, अच्छी सोचेंगे तो। आप लोग क्या करेंगे पहले बताओ? आप लोगों को अल्लाह ने ताकत दी सोचने की? हाँ, ताकत दी। अब क्या करेंगे उस ताकत से? बताओ चलो। अल्लाह की इबादत करेंगे, अच्छी चीज करेंगे, गलत चीज करेंगे? बताओ चलो। कुरान रीड करेंगे इंशाअल्लाह, अच्छी चीज करेंगे। आप लोग ये सोचने की ताकत का अच्छा इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो, अच्छी नियत करो। चलो यहाँ पर। हाँ, देखो आप लोग अभी बड़े होने वाले हो, आपकी ताकत अभी सोचने की बढ़ने वाली है और कि कम होने वाली है? बढ़ने वाली है। तो जितनी बढ़ेगी आप लोग अच्छी अच्छी चीज सोचोगे कि गलत गलत चीज सोचोगे? अच्छी अच्छी चीज सोचेंगे तो ये अल्लाह ताला का शुक्र किए। हाँ, और गलत गलत चीज सोचेंगे तो ये क्या है? नाशुक्री है। नाशुक्री करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला लेसन क्या? हमने अल्लाह के एहसान को याद किया। कौन सा एहसान? सोचने की ताकत दी। अल्लाह ताला ने क्या ताकत दी? सोचने की ताकत दी। यस, सोचने की कैपेसिटी सोचने की दी। अच्छा, हाँ, तो उसका क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? अच्छा इस्तेमाल करेंगे। सोचेंगे, अच्छी चीज सोचेंगे, बुरी चीज सोचेंगे? बुरी चीज सोच सकते हैं? नहीं। सोच सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। चलो सेकंड, अब हम आते हैं ईमान के हमारे सेक्शन में। आज हम ईमान के ताल्लुक से एक बहुत अहम बात देखेंगे, लेकिन देखने से पहले, बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछने वाला हूं। ये बताओ, ये क्या है? पेंसिल। इसका काम क्या है? इसको लिखते, लिखने के लिए है। हाँ। इसका मकसद क्या है? लिखना। हाँ, अगर मान लो आप पेंसिल को यूज कर रहे हो, कुछ लिख ही नहीं पा रहे हो, कुछ लिख ही नहीं रहा है, तो ये पेंसिल अच्छी पेंसिल है, बुरी पेंसिल है? बुरी पेंसिल। अगर लिख रहे कुछ आ ही नहीं रहा है, तो सही है गलत है? अच्छी पेंसिल है, बुरी पेंसिल है? बुरी। इसको क्या करोगे आप? लिखते रहोगे? फेंक देंगे? क्यों? नहीं, शॉप करेंगे। शार्प, हाँ, शार्पनर किए, सब कुछ किए, फिर भी लिख रहे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ काम की नहीं होगी ना? यस। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? इरेजर। इसका क्या मकसद है? इसका पेंसिल इरेज करने के लिए। इरेज करना। अगर आप इरेज कर रहे हो, कुछ इरेज हो ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे? तो फेंक देंगे। कुछ काम का है ये? नहीं। अगर बहुत किए फिर भी इरेज नहीं हुआ, तो कुछ फायदा है इसका? नहीं। कुछ फायदा नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? शार्पनर। शार्पनर है। इसका क्या मकसद है? पेंसिल शार्पन करना। हाँ,
पेंसिल शार्पन करना। अगर आप शार्पन कर रहे हो कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्या करोगे? कुछ काम का है ये? कुछ काम का नहीं है। हाँ, अच्छा ये क्या है? बॉल। इसका क्या मकसद है? इसका खेलने के लिए। तो बॉल को फेंको तो बाउंस होना चाहिए ना। अगर फेंको और बाउंस ही नहीं हो रहा है ऐसे और कुछ काम ही नहीं है, इसको कोई यूज ही नहीं हो अगर इसका, तो क्या होगा? कुछ भी काम नहीं है। ये क्या है? बलून का क्या मकसद है? फूलने का। ब्लो करना मकसद है। अब ब्लो कर रहे हैं ब्लो ही नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे आप? फेंक देंगे। कुछ काम का है, कुछ काम का नहीं होगा। अच्छा ये क्या है? बैग। किसकी बैग है ये भाई? क्यों? आप यहाँ से जाने वाले हो स्कूल? हाँ, इसका क्या मकसद है? और बुक को उठा के स्कूल ले आना। हर एक चीज का कुछ मकसद है ना। ये किसकी वाटर बॉटल है? मेरी। ये वाटर बॉटल का क्या मकसद है? पानी रखना। ओके, वेरी गुड। हर चीज का कुछ मकसद है। हर चीज का मकसद है। हाँ, ये टेबल का क्या मकसद है? कुछ खाना। कुछ भी रखें, कुछ भी खाना खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये चेयर्स का क्या मकसद है? बैठने का। ये कपड़े का क्या मकसद है? पहनना। हाँ, हर चीज का कुछ मकसद है। और एक मिसाल दे रहा हूं, ये क्या है? चम्मच। ये क्या चीज के लिए है? इसको खाना पकाने के लिए। खाना पकाने के लिए है ये। हाँ, ये चम्मच क्यों है? आपने देखा किसी को पकाते हुए? देखा है? आपकी मम्मी को देखा है पकाते हुए? अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? बाउल। ये क्या है? तपेली। क्या चीज के लिए है ये? इसको खाना रखने के लिए। रखने के लिए और इसे? पकाने के लिए। और पकाने के लिए भी है। इसका कुछ मकसद है? ये क्या है? ढक्कन। क्या चीज के लिए है? कवर। क्या चीज के लिए? खाना कवर क्यों कवर क्यों करना है? क्योंकि खराब हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा, पकाने में भी काम आता है और बाद में स्टोर करने में, नहीं तो सब इंसेक्ट्स जा सकते हैं। हाँ, और स्टीम से भी कुक करते हैं। यस, बहुत से पर्पस होते हैं। तो हर चीज का कुछ मकसद है। अब सवाल ये है, हमारा क्या मकसद है? अल्लाह की इबादत करना। अगर हम लोग बिना मकसद के जी रहे हैं, हाँ, अगर जिंदगी में कोई पर्पस ही नहीं है तो सही गलत है? गलत। हाँ, गलत। हमारे पास तो मकसद होना चाहिए ना। हाँ, हम लोग दुनिया में आए, हम लोग जी रहे हैं, बिना मकसद जी रहे हैं? कोई मकसद तो होना चाहिए ना, और पता होना चाहिए ना मकसद क्या है। तो आज हम लोग हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी के मकसद के बारे में कुछ देखेंगे। आप ध्यान से सुनो, इंशाल्लाह बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। हाँ, और गिफ्ट कहाँ मिलेगा मालूम है आपको? असल गिफ्ट, रियल गिफ्ट कहाँ मिलने वाला है? जन्नत में। बिल्कुल सही, आपको इस बात पे 2 पेंसिल्स मिलती है। रियल गिफ्ट कहाँ मिलने वाला है? जन्नत में। और यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे बस एक छोटा सा अप्रिसिएशन। हाँ, मतलब मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत सारे अच्छे काम करो, तो बस आपको इनकरेज करने के लिए। लेकिन रियल गिफ्ट ये नहीं है। रियल गिफ्ट वो जन्नत है। हाँ, तो हम लोग आज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जिंदगी का मकसद। इससे पहले कि हम अपनी जिंदगी का मकसद देखें, टाइम हो गया एक ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद हम इंशाअल्लाह देखेंगे हमारी जिंदगी का मकसद। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम। हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल जानिए शेख हाफिज अब्दुल तव्वाब से कुरान और हदीस की रोशनी में दीनों दुनिया की हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल, हर बुध दोपहर 2:30 बजे और रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए खुशगवार जिंदगी के उसूल जानिए शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से आज की टेंशन भरी जिंदगी में अपने आप को खुश रखने के इस्लामी उसूल, हर बुध रात 8:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए दरसे कुरान देखिए शेख सनाउल्लाह मदनी के साथ कुरान का ऐसा दर्स जो आपके जहन को मुनव्वर कर दे। हर पीर से जुमेरात और सनीचर सुबह 6:30 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। आप सब बच्चों का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम में। हम देख रहे थे हमारी जिंदगी का
मकसद। अच्छा ये बताओ, अगर आप घर पे हो, अचानक दरवाजा कोई नॉक करे या घंटी बजाए, टिंग टोंग, बेल। और घर का दरवाजा कौन खोलता है? आपको अलाउड है खोलना? हाँ, संभाला करो। हाँ, नहीं खोलते हो आप? वेरी गुड। हाँ, सेफ्टी के एंगल से देखो। अब सोचो आपकी अम्मी खोलते हैं, आपके फादर दरवाजा खोलते हैं, खोलने के बाद बाहर कोई है, उसको पूछते हैं यस, वो कहते हैं मैंने ऐसे ही नॉक किया, ऐसे ही नॉक किया, ऐसे ही घंटी बजाया, तो क्या लगेगा आपको? हाँ, क्यों? अच्छा लगेगा क्योंकि डिस्टर्ब कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, और क्या लगेगा आपको? वो पर्सन जिन्होंने ऐसे ही नॉक किया, आपको क्या लगेगा? सब सही है? नहीं, बेल खराब। हाँ, बेल खराब भी हो सकती है। ऐसे बार बार कोई नॉक करता रहे तो हाँ, घंटी कर बजाते रहे, ओके। लेकिन अगर एक ही बार बजाए तो आपको क्या लगेगा? हाँ, कोई वो पर्सन कोई आके ऐसे ही किसी का घर नॉक करे, अच्छी चीज है? नहीं। हाँ, ये क्या है अभी? अब बताओ, कोई नॉक करता है, कोई कुछ कर रहा है, आप लोग यहाँ आए हो, कुछ मकसद है, कुछ सीखने आए हो। मैं यहाँ आया हूँ कुछ ना कुछ बात करने सिखाने आया हूँ। हर चीज का कुछ ना कुछ मकसद होता है। हमारी जिंदगी का भी मकसद है। क्या मकसद है? अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया, सूरे अज़्ज़ारियात में सूरा नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया। हमें अल्लाह ताला ने क्यों बनाया? सिर्फ ताकि हम अल्लाह की इबादत करें। हम लोग बिना पर्पस के, बिना मकसद के नहीं जी रहे हैं। हमारी जिंदगी में मकसद है। और क्या मकसद है? कि हम जी रहे हैं, अल्लाह के लिए जी रहे हैं। किसके लिए जी रहे हैं? अल्लाह के लिए। कुछ लोगों का मकसद होता है, वो लोग बोल रहे हैं हम लोग जी रहे हैं पैसों के लिए जी रहे हैं, पैसे उनको चाहिए, पैसे, पैसे के लिए भागते हैं भागते हैं भागते हैं, सही गलत कुछ भी करते हैं। हाँ, कुछ भी करते हैं, लेकिन लास्ट में जितने पैसे मिलते हैं ना, जब वो दुनिया से जाते हैं, आपको पता है दुनिया से हम सबको जाना है। सब लोग जाते हैं यहाँ से, दुनिया से सब लोग जाते हैं, सबका इंतकाल होता है। हाँ, जब दुनिया से जाते हैं तो सब पैसा भी डाल देते हैं कब्र में। नहीं, इनका पैसा ये लो डालो, कब्र में डालो, डालते हैं। हाँ, वो पैसा फिर कहाँ होता है? छोड़ के जाते हैं। तो मकसद क्या होता है? उनका पैसा होता है, वो पैसा क्या करते हैं? वो छोड़ के जाते हैं। हालांकि हम लोग जी रहे हैं अल्लाह के लिए। हम लोग अच्छे काम करेंगे, किसके लिए करेंगे? अल्लाह के लिए। हाँ, पैसे के लिए अच्छा काम करेंगे? सिर्फ पैसों के लिए करते हैं कुछ लोग अच्छा काम। हाँ, लेकिन पैसा छोड़ के जाएंगे। हमारे साथ हमारा पैसा नहीं आएगा, लेकिन हमारे साथ हमारा ईमान, हमारे अमल आएंगे, ये सुनो। हाँ, तो हमारा जीना किसके लिए है? अल्लाह के लिए। और आसमान और जमीन का सिर्फ अल्लाह ताला मालिक है। सिर्फ एक रब है, अल्लाह ही की इबादत हम सबको करनी चाहिए। तो वमा खलक़तुल जिन्ना, आप लोग साथ में रिपीट करेंगे मेरे, हाँ, ताकि याद हो जाएगा, हो सकता है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हाँ, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मैंने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। अपनी इबादत। किस मकसद के लिए? सिर्फ अल्लाह ताला हमें जो बनाया, ये हाथ अल्लाह ताला ने दिया, ये अल्लाह ताला ने सारी ताकत दी। क्यों दी? ताकि हम अल्लाह की इबादत करें, हम अच्छे काम करें, हम दुनिया में अच्छी अच्छी चीजें करें। गलत काम करने के लिए अल्लाह ताला ने नहीं दिया। ये अल्लाह ताला ने दिमाग सोचने के लिए क्यों दिया? अच्छे काम सोचने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। बिल्कुल सही। हाँ, तो देखा हमने। और हम एक और चीज देखेंगे कुरान में, सूरह मुल्क में अल्लाह ने बताया, सूरा 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौता, वो जिसने मौत बनाई, वल हयाता, जिंदगी बनाई। दुनिया में आते हैं, जिंदगी शुरू होती है, और फिर अल्लाह ताला ने मौत बनाई। मौत और पैदाइश के बीच की जो जिंदगी है, ये क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे काम करता अच्छे है। काम करते हैं। ये क्या है? दुनिया की जिंदगी क्या है? कौन बताएगा क्या है? यहाँ पे क्या बताया? यस, मकसद है इबादत, लेकिन है क्या ये? कौन बताएगा? जन्नत। जन्नत पाने के लिए है, लेकिन ये दुनिया की जिंदगी है क्या? कौन बताएगा? कौन बताएगा? दुनिया की जिंदगी, मौत और पैदाइश के बीच की जो जिंदगी है, अल्लाह ताला ने क्या बताया कि हमने मौत को बनाया और जिंदगी को बनाया ताकि तुम्हें आजमाए
कि तुम में से कौन अच्छे काम करता है, तो ये जिंदगी क्या है? आजमाए। क्या है? क्या आजमाए? उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? आजमाना यानी टेस्ट करना। टेस्ट है ये, टेस्ट। एग्जाम है ये क्या है? एग्जाम है। एग्जाम के अंदर क्या करना है? अल्लाह की इबादत करना है। मेरे बच्चों, आप लोगों को इंशाल्लाह इस एग्जाम में से पास होकर आगे बढ़ना है। और पास होने के लिए क्या करना है? पहले तो एहसास होना चाहिए ये क्या है? एग्जाम है। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग को एग्जाम में बैठे हो? हाँ। एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में लिखना होता है। लिखना होता है। वो जो याद करते हैं वो लिखना होता है। वो लिखना होता है। और क्या करना होता है? हाँ, यस, और क्या करना होता है? और इबादत करना। एग्जाम के अंदर बैठ के इबादत कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। हाँ, एग्जाम के अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं आप? स्कूल के एग्जाम में क्या करते हो? एग्जाम से पहले बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन एग्जाम के अंदर क्या करोगे आप? लिखेंगे जो याद लिखेंगे। हाँ। कोई अगर एग्जाम में जाए और जा करके वहां पे सो जाए, सो जाए, सही है गलत है? गलत। हाँ, गलत। क्यों? सोना है उसको? नहीं, एग्जाम आराम करना है। बहुत थक गया था मैं स्टडी करके बहुत थक गया, अब मैं एग्जाम में आके आराम कर रहा हूँ, तो सही है गलत है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि एग्जाम में सो रहे हैं। सो रहे हैं तो गलत है? गलत। क्यों गलत है? आप तो बताओ तो सही, क्यों गलत है? क्योंकि एग्जाम में जाके अच्छे से सो जाए तो सही है गलत है? क्यों गलत है? क्यों गलत है? बोलो। ये ट्रक कब यहां से जाएगी? हर बार मैं उठाता हूं वापस चले जाती है। ये गलत क्यों है बताओ? एग्जाम में जाके फिर सोना चाहिए ना, गलत ही नहीं है ना? सोना अच्छी बात है। एग्जाम में घर पे जाकर सोना चाहिए था। नहीं, एग्जाम में जाके कोई सो जाए तो सही है गलत है? गलत। क्यों गलत? गलत तो बोल रहे हो आप लोग, लेकिन गलत क्यों? यस, इसका बोलो, क्या बोल रहे हो? एग्जाम से घर पे घर पे जाके सोना चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम में जाके कोई सोए, आप लोगों ने कहा गलत है, लेकिन क्यों गलत है वो भी तो बताओ। क्योंकि एग्जाम में सोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि अभी एग्जाम कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं, अगर किसी को सो जाए तो क्यों गलत है? एग्जाम में सोए थे एग्जाम में जाकर? नहीं सोए? हाँ, क्यों नहीं सोए? क्योंकि अभी एग्जाम चालू और तो क्यों नहीं सोना है? क्योंकि टीचर डांटते थे। टीचर डांटेंगे, और टीचर नहीं डांटे तो सोने दो, सो जाओ। तो क्यों गलत है बताओ जल्दी, इजी आंसर है। इसलिए गलत है क्योंकि एग्जाम में जाके सो जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे कि नहीं? फिर रिजल्ट आएगा तो क्या करेंगे? क्राइंग करेगा ना कोई स्टूडेंट, बोले मैं फेल हो गया। हाँ, फेल होना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। तो एग्जाम में जाके सोएंगे तो फेल हो जाएंगे। लेकिन कितने सारे लोग यहाँ दुनिया में जी रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है क्यों जी रहे हैं, क्या मकसद है। पेंसिल का मकसद है, इरेजर का मकसद है, चॉकलेट का भी मकसद है, हाँ, लेकिन उन्हें खुद की जिंदगी का मकसद मालूम ही नहीं। तो ये सही है गलत है? आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है। दुनिया की जिंदगी क्या है? एग्जाम है। एग्जाम के अंदर क्या करना है? इंशाल्लाह अल्लाह की इबादत करना है। देखिए, स्कूल के एग्जाम में लिखना होता है, ये एग्जाम के अंदर है ना, अल्लाह की इबादत करना। अच्छा, मालूम है एग्जाम के अंदर बुक ले आने देते हैं, बुक्स। हाँ। बुक्स ले आके देखो फिर लिखो। नो। अलाउड है? हाँ, अलाउड है नहीं अलाउड? बुक लेके आने का। अच्छा, मालूम है ऐसे भी टाइप के एग्जाम होते हैं जिसे कहते हैं ओपन बुक एग्जाम। बोले लाओ बुक लाओ लिखो, हाँ, लेकिन वो डिफिकल्ट होता है एग्जाम। पता है आपको, ये दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ताला ने कुरान दिया है कि लो कुरान है, हाँ, पढ़ो कुरान, सही रास्ता देखो और सही रास्ते पर चलो, पास हो जाओगे। ऐसा नहीं कि कुरान पढ़ना अलाउड नहीं है, मतलब एग्जाम में देख सकते हैं, देख करके सही जवाब करना है। चलो, ये हो गया। जैसे कि अब हम लोग जैसे कि एग्जाम में पास हो गए तो हम लोग को गिफ्ट मिले एक साइकिल। ये एग्जाम में जन्नत मिलेगी। ये एग्जाम में जो कितना अच्छा जवाब दिया, आपको इसके लिए बॉल मिल रहा है। हाँ, तो हम ये देखते हैं कि ये है मकसद। तो मेरे बच्चों, ये है जिंदगी का मकसद। इस मकसद को याद रखना है। कब तक याद रखना है? कितने दिन याद रखोगे? 2 days? जब तक क़यामत आएगी तब तक। मतलब कि तब तक आखिरत। आप लोग कब तक? क़यामत तक आप लोग जिंदा रहने वाले हो क्या? हाँ। नहीं,
हम लोग जितना जिंदा है उतना याद जब भी रखेंगे। कयामत आएगी तो उधर माशाल्लाह आप लोगों ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही। हाँ, तो कब तक याद रखेंगे? जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक याद रखेंगे। हाँ, जब दुनिया से गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छी चीज याद रखकर अच्छी चीज पर जी कर जाएंगे तो मकसद हासिल हो जाएगा। तो बच्चों, आज के इस प्रोग्राम में आपने सीखा क्या? क्या सीखे यहाँ से? कि अल्लाह की इबादत करना चाहिए। ये क्या है? हमारी जिंदगी का मकसद। और क्या सीखा आपने? अल्लाह के एहसान। कौन सा एहसान? कौन से एहसान के बारे में आज सीखा? अल्लाह की इबादत। कौन से एहसान के बारे में हमने आज सीखा? जो अल्लाह ने हमको ताकत दी। कौन सी ताकत दी? सुनने की हाँ। और देखने की, समझने की और सोचने की Yes, और माश- बोलने की। यस माशाल्लाह, आपको तो 3 मिलेंगे क्योंकि बहुत सारा कुछ बता दिया। लेकिन आज हमने मेन ध्यान कौन सी ताकत के बारे में देखा? सोचने की ताकत। सोचने की। कि सोचने से हमें क्या सोचना है? अच्छी चीजें सोचना है। चीजें। अच्छी चीजें सोचेंगे तो अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे? जन्नत जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये चंद बातें हैं, ये बातों को याद रखना है इंशाल्लाह। जिंदगी में चॉइस करना होता है, चूज। मालूम है आपको, जैसे आप लोग बड़े होते जाएंगे तो सामने रास्ते आते हैं। रास्ते कौन से रास्ते? सही रास्ता भी आता है, गलत रास्ता भी आता है। सही रास्ता आता है जैसे सच बोलना, अच्छे काम करना, किसी की हेल्प करना, अल्लाह की इबादत करना। और गलत रास्ते भी आते हैं जैसे झूठ बोलना, गलत काम करना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी की चीटिंग करना, हाँ, किसी के साथ गलत करना, हाँ, गुनाह करना। सही रास्ते भी आते हैं, गलत रास्ते भी आते हैं। लेकिन याद रखना, अगर आपको आपकी जिंदगी का मकसद पता है, अगर आपको आपकी जिंदगी का मकसद पता है, ये पेंसिल का क्या मकसद है? लिखने का। अगर इस पेंसिल का मकसद है तो ये पेंसिल कामयाब है, नहीं तो क्या है? वेस्ट है। अगर आपको अपनी जिंदगी का मकसद मालूम है तो इंशाल्लाह आप वो जन्नत के रास्ते पर चल के जन्नत तक पहुंच जाओगे इंशाल्लाह। तो याद रखना अपनी ज़िंदगी के मकसद को, अल्लाह के एहसानों को, उसी पे जीना, उसी पे ज़िंदगी गुजारना। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको नेक होकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।